Hello students, this is Jyoti from SJKL DAV Centenary Senior Secondary Public School, Mansa, Punjab. I am here with you to discuss Chapter 5, Human Capital Formation. Students, today we will discuss the topic Introduction about Human Capital Formation and the sources of Human Capital Formation. Also its relation with physical capital and other terms like human development. So let's start discussing about human capital formation. Students, today's topic is human capital formation. How human can be converted into capital and how it is formed. Let's discuss in detail. So in this chapter, the topics, the concepts we were going to discuss are human capital, significance of human capital, sources of human capital, relationship among human capital and physical capital, human growth, human development, and the growth of education sector in India. So students, before discussing the other concepts, let's firstly discuss what is human capital. Human capital, students, comprise two words, human plus capital. So human capital refers to the stock of skill and expertise of a nation at a point of time. In simple words, what can be said? That sum total of skill and expertise of human in a nation is called human capital. For example, the persons who are skilled and having expertise and knowledge may be the engineers, doctors, professors, and workers of all types who are engaged or have capacity and expertise to be engaged in the process of production. So this is called human capital. So students, human capital क्या है? जैसे कि एक कंट्री में फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं. फिजिकल रिसोर्सेज मींस फिजिकल कैपिटल, जैसे लैंड, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग, मशीनरी. उसी तरह से ह्यूमन भी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है और ह्यूमन रिसोर्सेज को ही हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन कैपिटल. जब एक ह्यूमन के पास knowledge, expertise, skill, education, better health facilities होती हैं, तो वो ह्यूमन से ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव टेकन लाइक इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स एंड ऑल टाइप ऑफ वर्कर्स जिनके पास कैपेसिटी है कि वो प्रोडक्शन एक्टिविटी में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कर रहे हैं या कर सकते हैं, वो सारे जो ह्यूमन कैपिटल के अंडर आ जाएंगे. तो ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू stock of skill and expertise of a nation at a given point of time. So students, societies need sufficient human capital to produce other human capital. For example, better teachers, better doctors, better engineers, scientists can produce the other human capital of their tribe. So human capital represents enhanced labor productivity, which is acquired ability and outcome of deliberate investment decisions with an expectation that is it will increase future income resources. जब एक पर्सन ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है, तो ना सिर्फ उसके पास स्किल, एक्सपर्टाइज और नॉलेज जो है वो इनहेंस होता है, बल्कि उसकी इनकम की जो अर्निंग की कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है. सो दिस इज ह्यूमन कैपिटल. एंड ह्यूमन कैपिटल is why it is called capital, because it is also productive like other types of capital. Now students, we have discussed about human capital earlier, so let's clarify the concept more by comparing it with physical capital. What is physical capital and what is human capital, and what is the difference between two? First, we compare them on the basis of tangibility and intangibility. Tangibility word का meaning होता है
जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम परचेज कर सकते हैं, जिसको हम सेल कर सकते हैं, जो विजिबल हो। तो फिजिकल कैपिटल की फीचर क्या है स्टूडेंट्स? इट इज टेंजिबल, और ये मार्केट में सेल की जा सकती है लाइक एनी अदर कॉमोडिटी, लाइक फॉर एग्जांपल मशीन, बिल्डिंग, इक्विपमेंट्स, ये सारी क्या है? फिजिकल कैपिटल है, क्योंकि इनको देखा जा सकता है और इनको सेल किया जा सकता है। जबकि जो ह्यूमन कैपिटल होती है दैट इज इंटेंजिबल, और इसको डायरेक्टली हम सेल नहीं कर सकते हैं, और ह्यूमन की सिर्फ सर्विसेज को हम जो है सेल कर सकते हैं। ऑनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू, फिजिकल कैपिटल को उसके ऑनर से अलग किया जा सकता है। जैसे मशीनरी को मशीनरी के ऑनर से अलग किया जा सकता है, मींस जब वो मशीनरी को सेल कर देगा तो उसकी ऑनरशिप सेपरेट हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। बट ह्यूमन कैपिटल को उसके ऑनर से अलग नहीं किया जा सकता, सिर्फ ह्यूमन कैपिटल अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, इट कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम द ऑनर। मोबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो फिजिकल कैपिटल कंप्लीटली मोबाइल है एक कंट्री से दूसरे कंट्री, और ह्यूमन कैपिटल वी कैन से इज नॉट परफेक्टली मोबाइल, क्योंकि कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, चाहे नेशनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू हो सकती हैं या कोई अदर ग्राउंड्स भी हो सकते हैं जिनके बेसिस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएं उनकी, वी कैन से मूवमेंट, नेशनैलिटी और कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू रिस्ट्रिक्शंस हो सकती है। एंड नेचर ऑफ डेप्रिसिएशन, जब हम फिजिकल कैपिटल को लगातार यूज करते हैं तो इट लेड्स टू डेप्रिसिएशन, इसकी वैल्यू जो है धीरे धीरे कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम मशीनरी को लगातार ईयर्स टू ईयर्स यूज करेंगे तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, डेप्रिशिएट हो जाएगी। बट ह्यूमन कैपिटल में डेप्रिसिएशन टेक प्लेस विद एजिंग, जैसे जैसे एक पर्सन की एज बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी जो ह्यूमन कैपिटल की वैल्यू है वो डेप्रिशिएट होगी। पर इसको हम एजुकेशन और हेल्थ पे अगर हम लगातार इन्वेस्ट करें, मींस अपनी स्किल, नॉलेज, एक्सपर्टाइज को बढ़ाते जाएं, तो इसको हम डेप्रिशिएट मतलब होने से काफी देर तक रोक सकते हैं। एंड द नेचर ऑफ बेनिफिट्स, फिजिकल कैपिटल का जो बेनिफिट होता है वो प्राइवेट नेचर का होता है और वो उसे ही मिलता है जो उसकी वैल्यू पे करता है। पर ह्यूमन कैपिटल के बेनिफिट दोनों तरह के होते हैं, प्राइवेट एज वेल एज सोशल। इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल एन एजुकेटेड पर्सन कैन इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट टू द सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ ए नेशन। अगर एक पर्सन पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, हेल्दी है, तो ना वो सिर्फ इंडिविजुअल बेनिफिट मींस प्राइवेट बेनिफिट होगा उस पर्सन का, बल्कि वो सोसाइटी के लिए भी सोशो इकोनॉमिक जो है प्रोग्रेस, वो नेशन की कंट्रीब्यूशन कर सकता है सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस करने में। तो इसके बेनिफिट्स प्राइवेट भी होते हैं और सोशल भी। सो दिस इज comparison in physical capital and human capital. Hope you have understood the meaning of human capital betterly with this difference. Students, let's compare the two terms human capital and human development. What is the difference and the relation in human capital and human development? Let's discuss. Human capital considers education and health as a means to increase labor productivity. Human capital के according education और health ऐसे दो साधन हैं, मीन्स हैं, सोर्सेज हैं जिनसे लेबर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की जा सकती है। एंड ऑन द अदर हैंड ह्यूमन डेवलपमेंट इस आइडिया पर बेस्ड है कि एजुकेशन और हेल्थ तो दोनों ह्यूमन की वेलबींग के लिए उसका एक इंटेग्रल पार्ट है, और पीपल जिसके पास एबिलिटी है पढ़ने लिखने की और हेल्दी लाइफ है जिसके पास, तभी वो बाकी मतलब के चॉइसेस को वैल्यू कर सकता है। सो दीज आर नॉट मीन्स, दीज आर इंटेग्रल फॉर ए ह्यूमन वेलबींग। एंड द सेकंड डिफरेंस इज ह्यूमन कैपिटल treats human beings as means to an end. So human beings are means to an end. What is means and what is end? Human beings are means and end is human capital. तो अगर human जो है इन्वेस्टमेंट करेगा एजुकेशन और वी कैन से
हेल्थ फैसिलिटीज के लिए, तो वो उसके लिए ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएंगी। बट यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना जरूरी है कि ह्यूमन कैपिटल के अकॉर्डिंग अगर एक पर्सन एजुकेशन और हेल्थ में इन्वेस्टमेंट करता है और वो अनप्रोडक्टिव होगी, अगर वो गुड्स और सर्विसेज की आउटपुट को इंक्रीज ना कर पाए, मींस अगर गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में एजुकेशन और हेल्थ सक्सेसफुल नहीं होते, तो ह्यूमन कैपिटल के अकॉर्डिंग वो अनप्रोडक्टिव होगा। बट ह्यूमन डेवलपमेंट में ह्यूमन बीइंग खुद एक अपने आप में एक एंड है, और हर एक इंडिविजुअल को ये राइट है कि वो लिटरेसी लेवल्स को जो है ले सके और एक हेल्दी लाइफ स्पेंड कर सके। तो ह्यूमन डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग एजुकेशन और हेल्थ जो है वो इंटेग्रल है ह्यूमन वेलबींग के लिए, और हर इंडिविजुअल को ये राइट है लिटरेसी और हेल्दी लाइफ लेड करने का। पर ह्यूमन कैपिटल के अकॉर्डिंग एजुकेशन और हेल्थ को एक मींस माना गया, एक सोर्स माना गया है कि अगर एजुकेशन और हेल्थ की फैसिलिटीज ह्यूमन लेंगे तभी वो ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो सकते हैं, और ह्यूमन कैपिटल से प्रोडक्टिविटी क्या होनी चाहिए, इनहेंस होनी चाहिए। Now students, the sources of human capital formation or determinants of human capital formation, this is your next topic, और जिसका मीनिंग क्या है कि वो कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे ह्यूमन कैपिटल जो है फॉर्म हो सकती है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो सकती है इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन करने से, हेल्थ वी कैन से एजुकेशन में इन्वेस्ट करने से, हेल्थ में इन्वेस्ट करने से, ऑन द जॉब ट्रेनिंग लेने से, माइग्रेशन से, और वी कैन से इंफॉर्मेशन लेने से। सो दीज आर द वेरियस सोर्सेज और वी कैन से डिटर्मिनेंट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। सबसे पहले है कि अगर ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट होना चाहता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन चाहता है, तो उसे एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा एजुकेशन में। एजुकेशन क्या है? Expenditure on education is the most effective way of enhancing and enlarging a productive workforce in the country. It is therefore very important determinant of human capital formation. Students, हर जो सोसाइटी है, हर एक सोसाइटी कोशिश करती है कि वो ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन की फैसिलिटीज जो है अवेल कर पाए, क्योंकि जो एजुकेशन पे आज जो एक्सपेंडिचर किया जा रहा है उसको हम एक्सपेंडिचर की बजाय क्या बोल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि जहां हम पैसा लगाते हैं और वहां से हमें बाद में क्या मिलते हैं, प्रोडक्टिव रिजल्ट्स, और वो प्रोडक्टिव रिजल्ट्स भी हमें लॉन्ग टाइम के लिए मिलते जाते हैं। तो एजुकेशन भी इसी तरह की एक इन्वेस्टमेंट है जिससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बहुत ज्यादा फास्ट स्पीड से हो सकती है। तो एजुकेशन लेना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। और एक पॉइंट, दिस इज द फैक्ट कॉर्नर, आई एम एडिंग दैट मॉनिटरी बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन आर फार एक्सीड द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। मीन्स आज हम एजुकेशन पे जो भी स्पेंड कर रहे हैं, जो भी एक तरह की आपको बोला कि वो एक्सपेंडिचर नहीं, वो इन्वेस्टमेंट है। तो जो भी हम एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फ्यूचर में उस एजुकेशन को लेकर जो फ्यूचर में हमें उसके बेनिफिट्स होने वाले हैं, मनी की फॉर्म में, इनकम की फॉर्म में, प्रॉफिट की फॉर्म में, वो एजुकेशन की कॉस्ट से कई गुना ज्यादा होते हैं। इसीलिए मार्केट वैल्यू ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सबसे जो बेस्ट एंड फास्ट सोर्स है वो है एजुकेशन। सो एजुकेशन पे स्पेंड करके, इन्वेस्टमेंट करके ह्यूमन कैपिटल जो है इजिली फॉर्मेशन ह्यूमन कैपिटल की हो सकती है। so this is the first source of human capital formation, and the other source is health. Students, you have heard that a sound mind lives in a sound body. तो health बहुत ज्यादा important है education की तरह। तो expenditure on health makes a man, क्योंकि अगर एक person healthy है तो obviously वो ज्यादा efficient होगा, ज्यादा productive होगा, और एक इकोनॉमी की जीडीपी में ज्यादा से ज्यादा वो ऐड कर सकता है। and expenditure on health therefore is important determinant of human capital formation। तो तब तक human capital formation नहीं हो सकती जब तक हेल्थ की फैसिलिटीज लेकर
जो पर्सन है वो हेल्दी ना हो। इट ब्रिंग्स आउट द बेस्ट ऑफ स्किल्स इन ह्यूमन बींग्स, और एक हेल्दी पर्सन ही अपनी स्किल्स का, अपने टैलेंट का जो बेस्ट यूज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, नॉलेजेबल है, स्किल्ड है, एक्सपर्ट है, बट उसकी हेल्थ जो है वो अच्छी नहीं रहती, तो स्टूडेंट्स हम उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अगर उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो अपनी स्किल, नॉलेज, एक्सपर्टाइज, एजुकेशन का जो प्रॉपर यूज है 100% प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। कहीं ना कहीं पे जाकर उसकी हेल्थ जो है उसमें ऑब्स्टेकल बन जाएगी। इसीलिए हेल्थ पर एक्सपेंडिचर करके भी जो है ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म किया जा सकता है। तो हेल्थ एक्सपेंडिचर किस टाइप का जो है कर सकती है गवर्नमेंट? प्रिवेंटिव मेडिसिन, जिसको हम बोलते हैं वैक्सीनेशन, कुरेटिव मेडिसिन, वी कैन से मेडिकल इंटरवेंशन ड्यूरिंग इलनेस। कुरेटिव मीन्स किसी भी मेडिसिन इलनेस को रिमूव करने के लिए जो हम मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हैं उसको बोलते हैं कुरेटिव मेडिसिन। एंड नेक्स्ट इज सोशल मेडिसिन। सोशल मेडिसिन मीन्स लोगों में हेल्थ लिटरेसी जो है, हेल्थ कॉन्शियसनेस स्प्रेड करना। एंड नेक्स्ट द प्रोविजन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड गुड सैनिटेशन। तो ये चार जो है मेजर्स मैंने आपको बताए, इन पर जो है स्पेंड करके, हेल्थ एक्सपेंडिचर करके ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की जा सकती है। आई एम रिपीटिंग इट फॉर यू। प्रिवेंटिव मेडिसिन मीन्स जो है इलनेस, जो सिकनेस, जो डिजीज वो आए ही ना, इसके लिए पहले ही प्रिवेंटिव मेडिसिन मीन्स वैक्सीनेशन फॉर एग्जाम्पल। कुरेटिव मेडिसिन, सोशल मेडिसिन एंड प्रोविजन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड गुड सैनिटेशन. So this is all about expenditure on health and human capital formation. And the next source is on the job training. Students, on the job training लेकर भी human capital को form किया जा सकता है. On the job training help workers to increase their specified skills. It enables them to raise the level of their efficiency. Firms are always inclined to undertake on the job training programs. कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अपने एम्प्लॉयज की नॉलेज को अप टू डेट करने के लिए, उसे स्पेशलाइज्ड स्किल्स सिखाने के लिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। को ट्रेनिंग लेकर वो पर्सन अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसको और ज्यादा इनहेंस कर सकता है। इसलिए जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं, डिटर्मिनेंट हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग वर्कर्स को देकर जो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो सकती है। तो कौन कौन सी फॉर्म्स हो सकती हैं ट्रेनिंग की? द वर्कर्स में बी ट्रेन इन द फॉर्म इटसेल्फ, मीन्स वहीं पे जहाँ पे वो काम करते हैं वहां पे उनको ट्रेनिंग दी जाए। एंड वर्कर्स में सेंट फॉर ऑफ कैंपस ट्रेनिंग, या उनको ट्रेनिंग सेंटर्स में भेजकर भी ट्रेनिंग दी जा सकती है। तो वर्कर को किसी भी वे से ट्रेनिंग देने से उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, एफिशिएंसी है, वो इंक्रीज हो जाएगी और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाती है। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग पर जितना भी एक्सपेंडिचर आता है वो एक वर्कर की जो प्रोडक्टिविटी इनहेंस हुई है, एफिशिएंसी इनहेंस हुई है, उससे ज्यादा नहीं होता। मींस बेनिफिट्स आर मोर देन इट्स कॉस्ट। सो ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज वेरी मस्ट फॉर द वर्कर्स to make their skills specialized and to update their knowledge. So students, we have discussed few sources to form human capital, and we will continue this topic further. Till then, thank you and have a nice day.